من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ. اللہ اکبر. جس نے اللہ کے لیے اس دنیا میں اللہ کا گھر بنایا. اب اکیلا نہیں, آپ کو اکیلے اگر ہمت نہیں ہے, اکیلے اگر آپ کو طاقت نہیں ہے, غور کر کے سنیے میری باتیں, سن کر کے جائیے گا, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو آپ مل گئے, حصہ لیا اس میں, آپ دنیا میں بنائیں گے اللہ کا گھر, تو کتنا بڑا آفر ہے کہ اللہ رب العالمین آخرت میں آپ کا گھر بنائے گا. یہ کتنا بڑا آفر ہے. دوسری چیز, مسجد کی کتنی ضرورت ہے, غور سے سنیے. پہلے مسجد, اس کے بعد آبادی. آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. پہلے مسجد, اس کے بعد آبادی. پہلے آپ مسجد بنائیے. دیکھیے اللہ کے رسول جب ہجرت کیے, اور ہجرت کیوں کیے تھے معلوم ہے؟ جب مکے میں دن بدن اسلام کی تعداد بڑھنے لگی, لوگ مسلمان ہونے لگے, مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی, اسلام ترقی کرنے لگا, اسلام کے جتنے بڑے بڑے ہیرو, دشمنوں کے جتنے بڑے بڑے ہیرو تھے, نیتا ٹائپ کے لوگ تھے, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, یہ دشمنوں کے ہیرو تھے. یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے, اور جمع ہونے کے بعد ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی. کہا کہ یہ دیکھیے دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, یہ اسلام ترقی کر رہا ہے, ایسا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں. نعوذ باللہ, نہ رہے بانس نہ بجے بانسوری, چلیے نبی کو ہم قتل کر دیتے ہیں. مشورہ کیے سب لوگ. اللہ رب العالمین نے, میں مختصر بتا رہا ہوں, بجریہ جبرائیل اللہ نے آپ کو یہ اطلاع دے دی کہ اللہ کے رسول آپ یہاں سے نکل جائیے, آپ کے قتل کی پلاننگ بنا چکے ہیں یہ لوگ. اللہ کے رسول نکل گئے. سنیے غور سے, اللہ کے رسول نکل گئے, ہجرت کرنے لگے, مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے لگے. سنیے, راستے میں ایک جگہ کا نام ہے قبا. کیا نام ہے؟ قبا. وہاں پر آپ رکے, ٹھہرے, اور سیرت کی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں. اللہ کے رسول 14 دن تک وہاں ٹھہرے تھے. کتنے دن تک؟ 14 دن تک اللہ کے رسول ٹھہرے تھے. اور اللہ کے رسول وہاں جو رکے 14 دن, تو سب سے پہلا کام اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اللہ کا گھر بنایا. ایک چیز معلوم ہوئی, بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں, یہ سوچتے ہیں مسجد نبوی پہلی مسجد ہے, جو مدینہ میں ہے وہ مسجد پہلی مسجد نہیں ہے. راستے میں اللہ کے رسول قبا میں 14 دن کے اندر ایک مسجد بنا دیے تھے. اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ پہلے آپ مسجد بنائیے, بعد میں آبادی. اور مسلمان جہاں پر ہو وہاں پر مسجد کی ضرورت ہے. اس کے بعد قبا سے چونکہ مدینہ نہیں آئے تھے, مدینہ جب اللہ کے رسول آئے, جہاں آپ کی سواری بیٹھی تھی, واقعہ بہت لمبا چوڑا, میں ادھر نہیں جاؤں گا, مجھے شارٹ کٹ بتانا ہے. نبی اکرم نے خالی جگہ کو دیکھا, نبی اکرم نے پوچھا, اے لوگوں یہ جگہ کس کی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا, اللہ کے رسول یہ جگہ تو 2 یتیم بچوں کی ہے, 2 یتیم بچوں کی ہے. اللہ کے رسول نے کہا دونوں بچوں کو بلاؤ. دونوں بچے اللہ کے رسول کے سامنے آئے. اللہ کے رسول نے کہا بیٹا یہ زمین تم دونوں کی ہے؟ دونوں بچوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا ہاں اللہ کے رسول یہ زمین تو ہم دونوں کی ہے. اللہ کے رسول نے کہا ایک کام کرو, میری تمنا خواہش یہ ہے کہ میں یہاں اللہ کا گھر بناؤں گا. مدینے میں گئے, سب سے پہلا کام کیا کیا اللہ کے رسول نے؟ کیا کیا؟ اللہ کا گھر بنائے. اللہ کے رسول مدینے میں گئے, سب سے پہلا کام اللہ کا گھر بنائے. تو دونوں بچوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں درہم و دینار کی ضرورت نہیں ہے, روپیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ اللہ کا گھر بنائیں گے تو جائیے, ہم فری میں دے رہے ہیں, مفت میں. لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہم فری میں نہیں لیں گے, تم کو قیمت لینی پڑے گی. اور اللہ کے رسول قیمت دلوا بھی دیے. سنیے, نبی کے اس فعل سے پتہ چلتا ہے, ایک نقطہ یاد رکھیے, کسی غریب کی زمین کو ہڑپ کر کے اسلام میں مسجد بنانا
जायज़ नहीं है। किसी यतीम की ज़मीन को हड़प करके इस्लाम में आप मस्जिद नहीं बना सकते हैं। मस्जिद आपकी बनेगी ही नहीं, ज़बरदस्ती वहाँ बनाएंगे तो। अब फैसला आप करें कि बाबरी मस्जिद के वहाँ अगर मंदिर थी और उसको तोड़ करके अगर मस्जिद बनाई गई है तो उतनी दिन से हमारी मस्जिद कबूल है कि नहीं। हालांकि कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई है, ये मैं नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सुनिए, तो मदीने में गए अल्लाह के रसूल, वहां पर भी सबसे पहले क्या काम किया? मस्जिद बनाए, मस्जिद नबवी। और माशाअल्लाह आज आप देखेंगे नबी के जमाने में मस्जिद छोटी मोटी थी, खजूर के पत्तों की छतें। बाज दफा जब बारिश होती तो आसमान से गिरने वाले पानी के कतरे जब जमीन पर गिरते और सहाबाई किराम सजदा करते, नबी अकरम सजदा करते, जमीन के धूल और कीचड़ सहाबाओं के चेहरों में, नबी के चेहरों में लग जाया करते थे। ऐ मेरे भाइयों सुनिए, गौर करके इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। ये मस्जिद नबवी दिन गुजरता गया, साल गुजरता गया, और सुनिए आज वही मस्जिद है जिसमें तकरीबन 12 से 13 लाख हाजी, अरे हजार नहीं बोल रहा हूं, सुनो, 12 से 13 लाख हाजी एक साथ मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ सकते हैं। ऐ चितौरिया वालों सुनो, नबी के जमाने में उस वक्त जिस वक्त मस्जिद बनी थी, कसम खुदा की खजूर के पत्तों की छत थी। उस वक्त मदीने में लोग उतने अमीर नहीं थे, उनके पास मालो दौलत उतने नहीं थे। सुनिएगा तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा। मदीने में नबी के जमाने में ये लाइटें नहीं थी, ये बिजली का इंतजाम नबी के जमाने में नहीं थी। सुनिए मेरे भाइयों, ये तेल, मिट्टी का तेल जिसको आप कैरोसिन बोलते हैं, मिट्टी का तेल डाल करके चिराग जलाया करते थे। मस्जिद नबवी का तो ये हाल था कि मगरिब की नमाज और इशा की नमाज अंधेरी में हुआ करती थी। किसी के घर इतना तेल नहीं कि मस्जिद नबवी के चिराग मस्जिद नबवी में दे और चिराग जलाने का काम आए। किसी के घर इतना तेल नहीं। पांच दफा तो मगरिब की नमाज और इशा की नमाज अंधेरे में हुआ करती थी। चितौरिया वालों सुनो, एक सहाबाई किराम शायद तमीम दारी, ये सहाबाई किराम, एक सहाबा जिनके घर में एक एक्स्ट्रा चिराग रखा हुआ था, इन्होंने तेल का इंतजाम किया। तेल का इंतजाम करने के बाद मस्जिद नबवी में चिराग ला करके रख दिए, और जैसे ही अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में गए, नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह के रसूल जैसे ही सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नबी ने देखा आज मस्जिद नबवी में किसी ने चिराग लाया है, नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट है। नबी अकरम ने पूछा, ये चिराग का इंतजाम किसने किया है? किसने तेल लाया है? किसने मस्जिद नबवी में चिराग का इंतजाम किया है? वो सहाबी जिसने इंतजाम किया था कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मेरे घर में एक्स्ट्रा चिराग रखा हुआ था, तेल का इंतजाम नहीं था, लेकिन मैंने तेल का इंतजाम किया। तेल का इंतजाम करने के बाद मैंने अल्लाह के घर में उस चिराग को ले आया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तुमने सिर्फ मस्जिद नबवी को रोशन नहीं किया है, बल्कि तुमने पूरे इस्लाम को मुनव्वर कर दिया है, पूरे इस्लाम को रोशन कर दिया है। ये देखिए मस्जिद के सिलसिले में मेरे भाइयों, ये देखिए सहाबाए किराम कैसे आगे बढ़ते थे, कैसे। सुनिए, नबी अकरम एक मजमे में, जिस तरह आप बैठे हुए हैं, मेरी गाड़ी थोड़ा स्पीड चलेगी, सुनिएगा, जिस तरीके से आप बैठे हुए हैं वैसे अल्लाह के रसूल एक मर्तबा सहाबाए किराम को लेके बैठे हुए थे, और कुरान करीम की एक आयत, इसीलिए मैं ये कहाँ पकड़ूं, कहाँ से शुरू करूं, चूंकि मैंने सूरह बकरा की आयत तिलावत की है। चलिए, वहां पर एक आयत है, हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान
मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से खौफ खाने वालों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। आप सवाल करेंगे मौलाना तब सारी कायनात के लिए नहीं है? नहीं, सारी कायनात के लिए भी है। अल्लाह ने दूसरे जगह में फरमाया है हुदल लिन्नास, ये कुरान सारी कायनात के लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, पारसियों के लिए, बुद्धिस्टों के लिए, जैनियों के लिए, मुसलमानों के लिए, सब के लिए ये कुरान हिदायत है। लेकिन बिलखुसूस अल्लाह से डरने वालों के लिए ये कुरान हिदायत है, अल्लाह से डरने वालों के लिए। अब आइए, सहाबाए किराम बैठे हुए हैं, एक आयत देखिए कैसे बदलते थे सहाबाए किराम। एक आयत अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन वल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्दन हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे? सहाबाए किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या मिलेगा, हम अल्लाह को देंगे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि चलो जन्नत। अरे एक चीज़ बता दूं, मस्जिद की जहां बात आ जाए ना, जिस काम में भी आप हिस्सा लेंगे, मतलब टोटी खराब है, टोटी समझते हैं ना, वो जो पानी निकलता है, आप क्या बोलते हैं इधर पता नहीं, तो हाँ नल, पानी निकलता है, आपने उसका काम करवा दिया। पंखा खराब है, आपने पंखे का काम करवा दिया। हाँ, मस्जिद में बिजली लाइट की है, बिल ज़्यादा आता है, आपने कह दिया मुअज्जिन साहब मैं बिल भर दूंगा, हाँ इसका बिल मैं दूंगा। मशीन खराब हो गई है, मशीन मैं ठीक करवा देता हूँ। जानते हैं अगर, फिर गौर से सुनिए, अगर मस्जिद के किसी काम में आपने हिस्सा लिया, इसका बदला जन्नत से नीचे कुछ है ही नहीं। अल्लाहु अकबर, बदला जन्नत से नीचे कुछ है ही नहीं। और जानते हैं जहां भी मस्जिद का मामला है, देखेंगे हजरत उस्मान आगे बढ़ चढ़ करके है, हजरत उस्मान। तो चलिए मैं 2 मिनट में इस बात को खत्म करता हूं। एक साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल बदले में क्या मिलेगा? नबी अकरम ने बताया कि बदले में जन्नत है। उन्होंने कहा हजरत अबू दरदा अंसारी कहते हैं ऐ अल्लाह के रसूल मदीने में मेरे 2 बाग हैं, खजूर के 2 गार्डन हैं। अल्लाह अकबर, खजूर के 2 बाग, 2 गार्डन है अल्लाह के रसूल मेरे, आप बताइए कौन सा मैं अल्लाह के रास्ते में दूं? अल्लाह के रसूल ने कहा ऐ मेरे सहाबी, वो तो तुम जानते हो कि कौन सा तुम अल्लाह को दोगे। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं ऊपर वाला बाग जो है अल्लाह के रास्ते में दे देता हूँ। अल्लाह के रास्ते में दे दिए। जन्नत की लालच देखिए मेरे भाइयों, जन्नत की जब बात आती थी सहाबाए किराम दौड़ करके आते थे। अल्लाह के रसूल बताइए क्या करना है? जंगे तबूक का वाकया उठा करके देखिए, आप लोग टाइम मुख्तसर दिए हैं, मैं उधर नहीं जाऊंगा, सुनिएगा। तो जब दे दिए, घर में आए, घर में देखा बीवी नहीं है, दरवाज़ा बंद है। पड़ोस के लोगों से पूछा मेरी बीवी कहाँ गई है? पड़ोसियों ने बताया ऐ अबू दरदा आपको आने में लेट हो गया, आपकी बीवी बच्चों को लेकर के बाग में, खजूर के बाग में चली गई है खजूर खिलाने के लिए बच्चों को। अबू दरदा अंसारी ने जैसे ही सुना मेरी बीवी खजूर के बाग में चली गई है, दौड़ लगा दिए और तेज दौड़ने लगे। या अल्लाह, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस बाग को, मेरे पास तो 2 बाग हैं, जिस बाग को मैंने अल्लाह के रास्ते में दिया है उसी बाग में कहीं ये चली ना जाए। दौड़ करके जब पहुंचे, क्या देखते हैं, हाय रे, जिस बाग को मैंने अल्लाह के रास्ते में दिया था उसी बाग में ये चली गई है। बाहर से अबू दरदा कह रहे हैं ऐ मेरी बीवी निकलो, जल्दी बाहर निकलो। कहा क्या हुआ? कहा बाद में बताऊंगा, पहले बाहर निकलो। बाहर आ गए। कहा क्या हुआ? कहा क्यों गई तुम उसमें? कहा आपको आने में लेट हो, आप आने में लेट कर दिए, बच्चे भूखे थे, मैंने उसको खजूर खिलाने के लिए मैं यहाँ तक ले आई। कहा अच्छा, ऐ मेरी बीवी ये बाग अब हमारा नहीं रहा तो मैं क्यों जाऊँगा अंदर, इसीलिए मैंने तुमको बुला लिया है। कहा क्या हुआ? क्या किए? खजूर पकने के करीब थे, बिल्कुल पकने के करीब थे, बस 2-4 दिनों में खजूर कट के मार्केट में ले जाते, उनके भी अच्छे दिन आ जाते। और सुनो, 1-2 दरख्त नहीं, ऐ चितौरिया वालों, 1-2 दरख्त नहीं, बल्कि खजूर के 600 दरख्त थे। उसमें कितने दरख्त? 600
600 درخت اس میں لگے ہوئے تھے. اب سنیے میرے بھائیوں, کہا اوڑھنی میں کیا ہے؟ کہا یہ دیکھو چند کھجورے ہیں میری اوڑھنی میں. ابو درداء نے ان کھجوروں کو اپنے ہاتھ میں لیے باغ کے اندر پھینک دیے. بچوں کے پاکٹ میں, بچوں کے جیب میں جو کھجوریں تھیں ان کھجوروں کو نکال کر کے باغ کے اندر پھینک دیے. بچوں کے منہ میں جو کھجوریں تھیں اب تک ان بچوں نے حلق کے نیچے حلق کے نیچے وہ کھجور نہیں اتری تھی. میرے بھائیوں منہ سے نکال کر کے باغ کے اندر پھینک دیے. اے میرے بھائیوں, اس کے بعد جو کھجوریں کھا لیے تھے ان کے بارے میں ابو درداء نے کیا کہا؟ اے اللہ, میری بیوی کے دوپٹے میں جو کھجوریں تھی اللہ میں نے اس کو باغ کے اندر پھینک دیا ہے. اے اللہ, میرے بچوں کے جیب میں پاکٹ میں جو کھجوریں تھی اللہ میں نے ان کھجوروں کو بھی باغ میں پھینک دیا ہے. اے اللہ, میرے بچوں کے منہ میں جو کھجوریں تھی وہ بھی میں نے باغ میں دے دیا ہے. اے اللہ, جو کھا لیے گئے میرے بچے حلق سے نیچے اتار لیے گئے, اے اللہ اس کا مالک میں نہیں ہوں. اے اللہ, اس کی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, اس کا مالک نہیں ہوں. اللہ تو معاف کر دے. اے چتوریا والو, ایک آیت سننے کے بعد نبی کی ایک فرمان سننے کے بعد کیسے صحابہ کرام جنت کی لالچ میں آگے بڑھتے اور آ کر کے جنت کو حاصل کرنے کے